A very good morning in Jai Hind class 11th. How are you all? I hope you all are doing fine. As well as you all must be acquainted now by giving the mock test of business studies, that how the PTs are going to be conducted. So get prepare yourself for the PTs as well. Now continuing with chapter number 3, that is chapter number 4, that is your business services. Yesterday I have told you to read out the fixed deposit account as well as the difference between the current account, saving bank account and the fixed deposit account. I hope you all had gone through this. Let's discuss it once again. What is fixed deposit account? See, before this, let's take a quick recap of saving bank account. इसमें आप क्या करते हो? आप एक small amount से bank account open कर सकते हो with zero balance as well as if we are talking about the public sector. Current account, it is for especially the businessman or any organization, right? They can open this by making an initial deposit of rupees 5,000. And now when we are talking about the fixed deposit account, this is also known as FD in short form. So the term fixed deposit means, इससे अपने आप ही समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमने फिक्स कर दिया अपना पैसा. It means deposit repayable only after the expiry of a specified period. That means you have deposited your money for 1 year, for 6 months, for 2 years. You are doing a FD of it. Means this is your fixed deposit, which you can, could be repayable only after a specified period. आप 1 साल बाद निकाल सकते हो, आप 6 मंथ बाद निकाल सकते हो, ठीक है. विच ऑर्डिनरली वेराइज फ्रॉम 15 days to 5 years. ओके, 15 days से 5 years तक की FD होती है. Since it is repayable only after a period of time which is to be determined at the time of opening of the account. It is also known as term deposit. Underline this. Let's suppose you are going to the bank and you have 50,000 rupees, okay, with you. You want to do an FD of this 50,000 amount, राइट. सो आप बैंक में जाएंगे, आप उन्हें बोलेंगे कि हमारे अकाउंट में 50,000 रुपीज़ हैं, या आप अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे 50,000 एंड यू विल आस्क द बैंक मैनेजर और द पीपल हु आर वर्किंग इन बैंक दैट आई वांट टू मेक अ FD ऑफ दिस 50,000. तो वो आपको एक रिसिप्ट देंगे और आपसे ड्यूरेशन पूछेंगे कि आर यू इंटरेस्टेड फॉर 6 month, फॉर 1 year, फॉर 2 year और फॉर 5 year. दैट मीन्स ये आपका पैसा इतने टाइम के लिए फिक्स हो गया है. इफ़ यू आर गोइंग फॉर 1 year, तो 1 year पे फॉर इंटरेस्ट रेट अब जो भी होगा 50,000 पे, लेट्स सपोज 50,000 पे वो 5% दे रहे हैं. सो दैट मीन्स 2,500. जब आप 1 year बाद अपनी FD आपकी ब्रेकआउट होगी, जब आप 1 year बाद when you'll go to the bank to withdraw this 50,000, you'll get 50,000, not 50,000, you'll get the principal amount along with the interest. That is you'll get total 52,500, जो कि अगर आपके पास घर में पड़े रहते तो शायद 50,000 ही रहते या खर्च हो जाते. So people generally used to make FDs of such amount, and that is also called term deposit. Term is 6 months to 15 days to 5 year. ठीक है. People who can afford to keep their money with banks for a certain period without withdrawing it go in for fixed deposit. Like I don't need this 50,000 for upcoming 1 year. तो मैंने 1 साल के लिए अपना पैसा फिक्स कर दिया है एक जगह पर. Fixed deposits are most suitable form of raising resources by a commercial bank, since they are repayable only after a fixed period of time. Once it is specified that you are doing FD for 6 months or 1 year, आप उसके बाद ही उसको निकाल सकते हो. The bank need not keep cash reserves more than the statutory requirement against these. ठीक है. अब आपको सिर्फ ये प्रिंसिपल अपना पैसा रखना है उसमें. इन केस आपको ज़रूरत पड़ गई और आप पहले जो उसका टेन्योर है उससे पहले निकालना चाहोगे तो वो उस दिन तक का इंटरेस्ट लगकर आपको मिल जाएगा. ओके. इट मे एम्प्लॉय दीज फंड्स मोर प्रॉफिटेबली बाय लेंडिंग अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फॉर रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड्स. अगर आप जितने लंबे टाइम के लिए रखते हो उतना ज़्यादा आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है. ठीक है. लाइक सपोज
1 ईयर के लिए तो 5% मिला, 2 ईयर के लिए 5.5, 5 ईयर के लिए हो सकता है 7% इंटरेस्ट रेट मिल जाए। आप जितने लंबे टाइम के लिए रखते हो उतना अच्छा इंटरेस्ट बैंक आपको देता है, क्योंकि बैंक के पास अल्टीमेटली एक सिक्योरिटी हो जाती है कि अब आपका पैसा हम कैसे भी यूज़ करें, बैंक भी तो आगे पैसा लगाता है, राइट। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द बैंक ऑफर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट्स। इन पर बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है, जितना लंबा पीरियड जाएगा उतना ही अच्छा आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाएगा। Those people having surplus fund prefer to deposit money in FDs only. Why? कुछ एडवांटेजेस हैं इनके। द वेरी फर्स्ट वन इज़ जो रेट ऑफ रिटर्न होता है, मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो बहुत हाई मिलता है आपको एफडी करने पर। इट इज़ हायर देन दैट अलाउड ऑन सेविंग अकाउंट। मतलब आपको सेविंग अकाउंट में तो क्या मिलेगा जो आपको एफडी करने पर मिलता है। Each bank prescribe its rate on term deposit ranging from 14 days or more than 3 years, 15 days, 14 days, 3 years, 4 years, 5 years, ठीक है, डिपेंड करता है लिक्विडिटी पोजीशन पर। The idle, come to the book, let's have a look at book. The idle and surplus fund of the people lying in FDs, जो हमारे पास सरप्लस होता है, रखा होता है, उसकी हम फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, एफडी कराते हैं, सो दैट वी कुड गेट द गुड रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। द कस्टमर्स कैन गेट लोन फ्रॉम द बैंक अप टू 90%। अगर आपने एफडी कराई हुई है उसके अगेंस्ट आप क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हो, उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो 90% ऑफ अमाउंट तक, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ी, आपने 50,000 2 ईयर्स के लिए बैंक को दिए हुए हैं अपने, आप इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हो 90% तक। मतलब आपको 45,000 रुपीज़ तक लोन मिल सकता है, 40 और 45,000, इट डिपेंड्स ऑन बैंक। किसी भी चीज़ के लिए आप ले रहे हो तो इतना पैसा आपको कैश मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आपका पैसा उनके पास है, आप वो नहीं निकालना चाहते हो, उसके अगेंस्ट आपको लोन लेना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा। द फिक्स डिपॉजिट्स आर नॉट रिटर्नेबल ऑन डिमांड एज दे हैव अ मैच्योरिटी पीरियड। अभी आई हैव टोल्ड यू, अगर बहुत इमरजेंसी हो गई तो आपको रिटर्न तो कर देंगे बट तब तक का इंटरेस्ट देके, फिर वो पूरा इंटरेस्ट नहीं देंगे आपको, ठीक है। मैच्योर होने पर अगर आप लेते हो तो आपको विद इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस विद इंटरेस्ट आपको वो मिलेगा। द डिपॉजिटर्स आर अलाउड टू एनकैश देयर डिपॉजिट रिसिप्ट बिफोर मैच्योरिटी बाय फोरगोइंग अ पार्ट ऑफ देयर इंटरेस्ट एक्रूड ऑन द डिपॉजिट्स। इस लाइन का क्या मतलब है, जो मैंने अभी आपको बताया, अगर आप बीच में विड्रॉल करेंगे, अपनी एफडी तोड़ेंगे, तो आपको उस दिन तक का इंटरेस्ट वो दे देंगे, राइट, विद द प्रिंसिपल अमाउंट। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री। करंट अकाउंट, दिस इज फॉर बिजनेसमैन और फॉर ऑर्गेनाइजेशन। पीरियड ऑफ डिपॉजिट, नो फिक्स्ड पीरियड, ठीक है, आप कभी भी डिपॉजिट करो, कभी भी विड्रॉल करो। एफडी के लिए फिक्स्ड पीरियड होता है, अभी जस्ट आई हैव टोल्ड यू, एंड फॉर सेविंग बैंक अकाउंट देयर इज अगेन नो फिक्स्ड पीरियड। फिक्स्ड पीरियड फॉर डिपॉजिट, आपके पास जब जब सेविंग आती है आप तब तब इसमें पैसा जमा करो। करंट में कभी भी पैसा सबमिट करो, डिपॉजिट करो, कभी भी विड्रॉल कर सकते हो आप। नंबर ऑफ डिपॉजिट्स, कितनी बार डिपॉजिट, इसमें देयर इज नो लिमिट इन करंट अकाउंट फॉर बिजनेसमैन, फॉर ऑर्गेनाइजेशन। एफडी में डिपॉजिट कैन ओनली बी 1। आप एक बार एफडी कराते हो, करा तो कितनी भी एफडी सकते हो, पर लाइक सपोज आप एक एफडी आपने 50,000 की करा दी, एक डिपॉजिट हो गया, इसके अलावा इस एफडी अकाउंट में और कुछ नहीं होगा। आप दूसरी एफडी करा सकते हो 1 लाख की, लेट्स सपोज, बट वो दूसरी होगी आपकी। ये 50,000 जो हो गई, अब आपके पास पैर में 20,000 आ गया, आप उनको बोलो कि भाई इस 50 में 20 और ऐड कर दो मेरे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। डिपॉजिट एक ही बार होगा। सेविंग बैंक में नो लिमिट टू द नंबर ऑफ डिपॉजिट दैट कैन बी मेड। आपके पास 20 रुपये, आपके पास 100 रुपये, आप जाओ बैंक में और डिपॉजिट कर दो। टाइम एंड नंबर ऑफ विड्रॉल, करंट अकाउंट फॉर बिजनेसमैन एंड ऑर्गेनाइजेशंस देयर इज नो टाइम लिमिट। टाइम ड्यूरेशन फॉर बिजनेस आवर्स एंड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, कभी भी निकाल सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट कैन बी मेड ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स्ड पीरियड, स्पेसिफाइड पीरियड आइदर फॉर 1 ईयर और फॉर 5 ईयर। एक फिक्स्ड पीरियड के बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हो। सेविंग में कैन बी मेड वंस और ट्वाइस अ डे, चाहे वो आप डेबिट कार्ड यूज़ करके कर रहे हो, 1 या 2 बार आप निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू द रूल्स, राइट, एंड एट एनी बिजनेस आवर्स, ड्यूरिंग एनी बिजनेस आवर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट,
करंट अकाउंट में नहीं मिलता, क्योंकि बेटा इसके साथ और एडवांटेजेस मिलती हैं। आप कितने भी डिपॉजिट कर सकते हो, आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हो। एफडी में बहुत हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और सेविंग अकाउंट में स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, राइट? क्यों मिलता है ऐसा? सेविंग में तो आपके पास 20 रुपये हुए तो डिपॉजिट कर दिए, 100 हुए तो डिपॉजिट कर दिए, मतलब करते जाते हो आप। फिक्स्ड में एक ही बार पैसा लेकर आते हो 50,000 20,000, और वो लंबे टाइम के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए बैंक को दे देते हो, ठीक है? फिर उस पैसे को स्पेसिफाइड पीरियड के बाद ही निकालते हो, इसलिए उस पर हायर रेट मिलता है इंटरेस्ट का। ऑपरेशन बाय चेक्स, ऑपरेटेड बाय चेक्स, करंट अकाउंट सिर्फ चेक से ही डील किए जाते हैं। फिक्स्ड में कोई चेक यूज़ नहीं होता कि आप चेक के थ्रू अपना एफडी तोड़ लें या कर दें। सेविंग बैंक में मे बी ऑपरेटेड बाय चेक्स और विड्रॉल स्लिप, या तो आप जाएंगे विड्रॉल स्लिप के थ्रू निकाल सकते हैं या चेक दे सकते हैं बैंक में जाकर, अगर आपको अपना पैसा निकालना है तो। ओके, I hope the difference is clear to you and the term current, fixed and saving account is clear, right? Now we are moving to another account, and that is multiple option deposit account. What is in it? This account is combination of saving and fixed account. See, this is a very interesting account. It is a combination of saving and your fixed account, which provides certain option to the depositors. कैसे? आप सेविंग अकाउंट में जो आपकी अर्निंग, लेट्स सपोज आपकी इनकम 15,000 है, उसमें से आप एवरी मंथ 2,000 सेव करते हैं। वो 2,000 आप अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं। फिक्स्ड में आपने अपनी इनकम में से 50,000 जोड़े, आपने वो कुछ साल के लिए, कुछ महीनों के लिए फिक्स कर दिए, राइट? द ऑप्शन में रिलेट टू कन्वर्जन ऑफ आइडल फंड इन द सेविंग अकाउंट इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट। मतलब क्या है इसका? आपने का सेविंग अकाउंट है, उसमें लेट्स सपोज आप डालते रहते हो, जो आपकी सेविंग आती है वो आप डालते जा रहे हो, ठीक है? डिपॉजिट करते रहते हो, कभी 200 रुपये, कभी 100, कभी कितने, जितने आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ये हमारे आइडल फंड को, दिस इज़ आवर आइडल फंड जो हम सेव करते हैं, ठीक है? इस फंड को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इन दी फिक्स्ड डिपॉजिट and encashment of fixed deposit as per depositors request। क्या मतलब हुआ? लेट्स सपोज ये 20,000 रुपये हो गए टोटल, अभी ये ऐड नहीं होके 20,000 नहीं होंगे, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। आपने बैंक को बोला कि जैसे ही मेरे ये 20,000 रुपये होते हैं आप इसे एफडी में कन्वर्ट कर दो। फिर आपने डालने शुरू किए, फिर आपने पैसे डालने शुरू किए, जैसे ही वो 20,000 रुपये आए बने, फिर एक और एफडी हो गई आपकी। मतलब सेविंग भी चल रहा है और सेविंग से एफडी पे भी कन्वर्ट हो रहा है। प्रॉफिट क्या है? सेविंग में तो कम इंटरेस्ट मिलता है, आप कितने भी जमा करके रखो, आप 50,000 साल में कर दो, मिलेगा वही कम इंटरेस्ट। लेकिन एफडी पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पर आपकी सेविंग एफडी में कन्वर्ट हो जाती है। मैनी बैंक ऑफर फ्लेक्सी डिपॉजिट स्कीम टू देयर डिपॉजिटर्स। इस तरह की स्कीम बहुत सारे बैंक डिपॉजिटर्स को देते हैं। The one who are the saving bank account holder who also hold checkbook, जिनके पास चेकबुक, भाई सेविंग बैंक जिनके पास होता है सेविंग अकाउंट, उनके पास चेकबुक होती है। Those who are having checkbook can give a standing instruction to his bank to convert the balance in his account into fixed deposit। ठीक है? क्या मतलब हुआ इसका? आपके पास, बेटा समझो इसे, आपने एक सेविंग अकाउंट खोला बैंक में जाके। सेविंग अकाउंट में आप क्या करते हो, जो भी आपकी पॉकेट मनी है आप उसको बैंक में डिपॉजिट करते हो। आपने बैंक को कहा कि मेरी जब भी सेविंग्स 20,000 रुपये हो जाए या 25,000 हो जाए, डिपेंड्स ऑन यू, आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए एफडी में। सेविंग में तो आपको पूरे साल में भी 3% इंटरेस्ट मिल रहा है, बट एफडी पे कितना मिल रहा है? 5.5% इंटरेस्ट। तो ये फ़ायदा है ना यहाँ पर, राइट? सो वेन एवर द बैलेंस क्रॉसेज 20,000 it will automatically be shifted to fixed deposit account at the current rate of interest, right? And the rate of interest on fixed deposit is always much higher than allowed on saving deposits. So the customer also enjoy the facility of deposit encashment. वो जब चाहे पैसे जमा कर सकता है whenever he issues a check of an amount higher than the existing balance in the saving account. So I hope the points are clear to you in the multiple option deposit account. What is in it? It is like it is a combination of saving account and fixed deposit account.
ओके चलो नाउ कम्स दी अनदर वन दैट इज़ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसे आरडी भी बोलते हैं। अच्छा आप लोग क्या करना बेटा, आस्क योर मदर अबाउट दी एफडीज एंड आरडीज। आपकी पेरेंट्स ने ना कराया होगा तो वो आपको और थोड़ा इसके लिए गाइड करेंगे, ठीक है, मतलब आपको और थोड़ा और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा इससे। So now comes the recurring deposit account. What is this? RD account. It has also gained wide popularity these days. Under this, the depositor is required to deposit a fixed amount of money every month. इसमें क्या होता है, FD तो आपने कर दी फॉर 6 मंथ फॉर 1 ईयर कि हम उसके बाद निकालेंगे। यहाँ आप हर महीने एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसा जमा करते हो। मतलब अगर हम रिकरिंग डिपॉजिट की बात करते हैं आरडी, तो लेट्स सपोज एवरी मंथ आपने सोचा कि मैं अपने 2000 रुपीज़ सेव करूँ, एवरी मंथ 2000 रुपीज़ सेव करूँ, कब तक, 6 मंथ तक। तो हर महीने या तो ऑटोमेटिक ऑटो डेबिट लगा देते हैं आपके अकाउंट से डायरेक्टली 2000 रुपीज़ डिडक्ट होके आपके आरडी अकाउंट में चले जाते हैं, और ये 6 मंथ तक आप कर रहे हो। दैट मीन्स जैसे ही आपके 6 मंथ कंप्लीट होंगे, राइट,